ਜਾਓ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਦਿਆਲ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਮਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮੰਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣਾ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੋਭ ਮੂਲ ਖੋਇਓ ਸਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣਾ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੋਭ ਮੂਲ ਖੋਇਓ ਸਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਗ ਮੈਂ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਤ ਹਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣ ਹਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰਹੁ ਸੰਗਤ ਹਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣ ਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, इस पावन शब्दी विचार आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਹਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਭੈ ਰਸ ਭੋਗਣ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੋਭ ਮੂਲ ਖੋਇਓ, ਸਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਡੰਡ ਪਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਰੋ, ਸੰਗਤ ਹਰ ਜਨ ਭਾਉ ਕਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣ ਹਰੇ, ਹਰ ਜਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਕੀ ਰੇਣ ਹਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਅਤੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 1015 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 12 ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ
आप जी पिछले दिनों तो सरवण कर रहे हो और 10 तो लैके 12 तक 3 अंग जो बाणी दे हन, इन्हां 3 शंतां दी विचार अज दे समय विच कीती जाएगी। अज दे शब्दां नूं समझण वास्ते थोड़ा जिहा शब्द दे पिछले प्रकरण वल ध्यान देना पएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस सारे ही शब्द विच मनुख दे जीवन की आरंभता, उसका शरीरक जीवन काल, उस विच कीते हुए माड़े और चंगे कर्म और उन्हां दा निकलिया होया सिट्टा दर्शाया ते अखीर नूं मनुख किस हालत विच चला जाता है। जिन्हां ने अपने जीवन नूं सफल कर लिया है उन्हां दी भी वार्ता है, ते जिहड़े जीवन की बाजी हार गए ने उन्हां बारे भी सतगुरु नानक साहब जी ने इत्थे बचन कीते। बाणी विच सब तो ज़्यादा जो विशा है वो मनुख नूं अपने शरीर प्रति, देह प्रति जागृत किया गया भी तेरा शरीर बहुत ही कीमती है। सब तो कीमती इत्थे इन्ना होर कुछ भी मुल्यवान नहीं है जिन्नी साडी देह कीमती है। पर नींद विच होण करके सुता होया मन इनू जानदा ही नहीं, ते एक एक पल करके इस शरीर दे विच पए हुए बड़े खजाने तो मानण तो बिना ही जन्म लैंदा है, अपने साह लैंदा है ते वापस हार के चला जाता है। उहदा कारण है कि बचपन तो ही इसनूं वो गल नहीं कही जाती कि तू काहदे वास्ते जन्मिया है। ये सब तो बड़ा कारण है फेल होण दा। और साडे समाज दे अंदर गिरावट दा कारण जे मूल विच लभ्या जाए ते ओदा सब तो वड्डा कारण बच्चे दी पैदाइश होण तो पहले 10 महीने उन्हां दा बहुत वड्डा रोल है। सारी जिंदगी ते ओदी छां पैंदी है ते फिर उस जिंदगी दे अगे जो साल बचपन दे लंघदे ने, हुण जो साडे माँ बाप नूं साडे दादे ने दिता सी उही सिक्ख्या उन्हां सानू दिती है ते कुदरती तौर ते उही सिक्ख्या अगों सानू मिलनी। समाज दी एक चेन चलदी जांदी, एक धारा चलदी जांदी। कोई विरला है जिहड़ा इस समाज दी धारा नूं तोड़ दिंदा है ते तोड़ के गुरु नाल तुरना शुरू कर दिंदा है। सिर्फ ओदा ही जीवन सफल हो सकदा है। बाकी इन्ना अमुल खजाना प्राप्त करन तो बाद भी जिहड़ी देह नूं देवते भी तरसदे गुरबाणी विच दसे गए ने, मनुख इनू ढो रहा है कि किसी तरह अज दा दिन लंघ जाए। इहदा कारण की? अज दा 80% मनुख दिन पास कर रहा भी अज दा दिन लंघ गया, कल दा निकल जाएगा, जिन्ना टाइम निकलेगा। क्यों? इनू इस शरीर की समझ ही नहीं आई। कबीर साहब इस शरीर बारे कहते ने कि कबीर मोती मार्ग बिथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघै जाए। आ जिहड़ा शरीर है बड़े हीरियां कीमती जवाहरातां दे नाल भरिया होया। इहदे विच नाम दा धन है। एक पासे ते संसारिक धंधियां विच संसार फसिया ते जदों असीं धर्म दे राह ते तुरने आ ते धर्मी बंदे भी आपसी झगड़ियां विच ही फसे रहिंदे ने। इस मार्ग वल बड़े घट लोग तुरदे, वो आपस विच खई जांदे ने जां गलत व्याख्या करी जांदे ने। इस करके कबीर जी कहते हैं, सतगुरां दी बाणी विच बचन है सलोकां अंदर कि कबीर मोती मार्ग बिथरे। उदाहरण दिती है कि रस्ते दे विच पिंड दा एक दलिद्री आदमी, इहदे विच उदाहरण है समझाउण वास्ते भी साडी हालात की है। वो कहंदे ने एक पिंड दे विच बड़ा दलिद्री
बड़ा गरीब और हर टाइम अपनी किस्मत नूं कोसदा रहिंदा सी। फिर ये बहाने लभे जाते हैं कि मेरी किस्मत विच लिखे ही कुछ नहीं, बंदा उपराला भी छड़ देंदा। वो बड़ा दलिद्री सी, इशनान भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं धोने, बस बैठे रहना, करना कुछ नहीं। तो कई बारी असीं इहनूं भी सबर संतोख समझ लैंदे आ भी हाथ ही कोई नहीं हिलाउणा। तो इस तरह वो बिल्कुल गरीब सी, रोटी मंग के खांदा सी, कपड़े पाटे हुए। तो एक दिन वो बाहर सड़क ते रोज शाम नूं निकलदा सी, एक पुल पैंदा सी। एक दिन वो लंघ रहा सी, कपड़े पाटे, उत्थों पिंड दा मुखिया जिहड़ा बादशाह कह लईए राजा सी लंघिया, वजीर नूं कहंदा है मेरे पिंड विच एडा दलिद्री बंदा भी है जिहदे कोल पाउण वास्ते कपड़े भी नहीं, खाण वास्ते रोटी, इहदा प्रबंध करो। वजीर सियाणा सी, उन्हें कहा राजन इस बंदे दे घर भावें तू हीरे सट दे, इनू किसी चीज़ की सार ही नहीं, इहदियां अखां बंद होईयां पईयां ने, इहदे अगे सारा कुछ परोस दे नूं इन्हें तां भी नहीं चुकना, इन्हें इसे तरह ही रहना। हुण जिहदे खाते विच ही दलिद्र पै गया, उहदे अगे भावें कुछ परोस दिओ। तो उन्हें राजे ने कहा भी नहीं, ये मनन विच नहीं आउंदा भी एक बंदे दे अगे तुसीं हीरे जवाहरात रखोगे तो वह चुके ना। कहन लगा करके वेख लो, कल नूं रोज लंघदा पुल तो। अगले दिन राजा ते वजीर पुल दे अगले पासे रुखां विच बैठ गए लुक के। वो दलिद्री आदमी आ रहा सी। एक बंदे नूं कहा भी पुल दे विच सोना खिलार दे सारा, क्योंकि वजीर ने कहा सी कि तू ये अगे भावें सोना खिलार दे, ने चुकना नहीं। राजा कहता है किवें हो सकता है, पुल दे अगे सोना खिलार दिता सारे पुल दे उत्ते। एक दलिद्र आदमी आ रहा सी, तो राजा ते वजीर अगले पासे लुक के बैठे, दोवां दी शर्त बजी। वजीर कहता इन्हें नहीं चुकना सोना, राजा कहता चुके क्यों ना जो सामने पिया। पर हैरानी की गल, वो बंदा पुल तो लंघिया, अगे जंजीरियां, कड़े, सोने दे जवाहरात पता नहीं किन्ने खिलरे सन, पर उन्हां दे उत्ते पैर लंघ के पार निकल गया। पैर रख के जदों पार निकलिया, राजा हैरान हो गया, उन्हें रोकिया। कहन लगे ओ मूर्खा, तेरे सामने पुल ते वेख किन्ना सोना पिया, तू चुकिया नहीं। कहन लगा कित्थे सोना है? कहंदे ओ सामने। कहंदे मैनूं दस्सिया नहीं, क्यों नहीं नजर आया? तो वो दलिद्री आदमी कहता भी मैं सारी उम्र हो गई इस पुल तो लंघदिया, ते अज मैं सोचा भी सारी उम्र अखां खोल के लंघिया, तो इस बारी आपां बंद करके लंघीए, अखां बंद करके पुल पार करी, खाली कोई लंघदा नहीं। यानी कि जिदन हीरे खिलरे सन उदन उन्हें अखां बंद कर लिया। कबीर साहब इहदे उत्ते श्लोक बोल रहे ने, कबीर मोती मार्ग बिथरे अंधा निकशो आए। ये मनुख कई जूना विचों लंघिया, पर आ जिहड़ा हुण टाइम मिलिया है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस समय दे विच इस शरीर दे विच सतगुरु जी कहंदे ने नाम दा खजाना है, अमृत रस है, एक नशा है, एक खुमारी है, एक ताजगी है, उन्होंने तू लभना है। पर सतगुरु इत्थे कह रहे हैं भी इस जन्म दे विच पार करन लग्या, इस पुल नूं पार करन लग्या, इन्हें अपनी बदकिस्मती का प्रगटावा किया भी अखां ही बंद कर लिया ने, सौ गया, रब वाले पासे तुरदा ही नहीं, सारी जिंदगी इस तरह खराब कर ली। इसलिए कहते मोती मार्ग बिथरे, बिथरे दा अर्थ खिलरे हुए ने, शरीर दे विच बड़े नाम दे हीरे खिलरे हुए ने, पर उथों लभदे ही नहीं। अंधा निकशो आए जोत बिना जगदीश की, जगत उलंघे जाए लभे किवें। जिहड़ी चीज़ ना लभना वो बंद पिया अंदर, ते नौ दुआरियां विच तुरिया फिरदा सारी उम्र। नौ दुआरे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया, ते अंदर 10वां गुरु के शब्द की कमाई द्वारा गुरु का उपदेश कमा के अंदरों कुछ लभना सी। पर साध संगत जी बाहर ही भटकदा रहा है। ये सुचेत करते ने सच्चे पातशाह। ये साडा जिहड़ा शरीर है, तन है, बहुत कीमती। गुरु नानक साहब जी इत्थे कह रहे हैं शरीर वाल ध्यान दे, अपने जीवन वाल ध्यान दे। आए सारे ने एक अखाड़ा है, परमात्मा ने तेनू समा दिता है, इस समय नू गवाई ना, नहीं ते अखीर नू खाली हथ
वापस मुड़ेगा ते फिर पछताना पएगा। सतगुरु जी का शब्द आप जी हुणे कीर्तन विच सरवण कर रहे सी भी इत्थे बहुत वड्डा अखाड़ा है, इत्थे घोल हुंदे ने इस संसार विच, ये भवजल है, मनुख दी पूंजी लुटी जाती है, विकार इनू ढा लेंदे ने। आप जी ने कीर्तन विच गुरु के प्यारियां तो सरवण कीता है, उहदे विच उन्होंने बचन कहे ने सुनाए ने गुरु अर्जन देव जी के वचन कि वात वजन टमक भेरियां मल लथे लैंदे फेरियां। साडी खजाने नूं कौन लुट गए? 5 विकार। काम लुट गया सब तो पहला, फिर क्रोध ने लुट लिया, फिर लोभ दियां लहरां ने लुट लिया, फिर मोह दे विच जीवन सौ गया ते हंकार ने ते किसे नूं छड्डिया ही नहीं। इस करके वात वजन टमक भेरियां दा मतलब इत्थे चौहां पासे माया दे वाजे वज रहे ने ते पहलवान जिहड़े विकार ने वो चौहां पासे बंदे दे मन नूं खिला घेर के खड़े ने। वात वजन टमक भेरियां मल लथे, मलदार थे पहलवान, लथेदार थे इस अखाड़े विच वड्डे वड्डे पहलवान विकारां दे फिरदे ने। मल लथे लैंदे फेरियां नेहते 5 जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो जिदे वल सतगुरु जी होए ते सतगुरु ने अपना शब्द बख्शिया, सिख ने कमाई की, उन्हें इन्हां 5 विकारां नूं जित के जिंदगी सफल कर ली ते अखीर नूं जदों मुड़िया जित के मुड़िया। सतगुरु जी की बाणी दे विच मैं इत्थे रुक के एक बेनती कर दियां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच रागां की तरतीब के मुताबक 30 राग जदों पहली संपादना हुई सी 1604 विच श्री दरबार साहब हरमंदर साहब विच जदों प्रकाश किया गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ते उदों सिर्फ 30 राग सन। उन्हां 30 रागां विच बाणी सी, पर बाद विच धन कलगीधर पातशाह जी ने किरपा की, उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी जिहड़ी है वो दमदमा साहब दे विच परत के दूजी बारी संपूर्णता की, यानी कि वो बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच चढ़ाई। ते जदों आपां सब तो 30 तो अगला एक राग जैजावंती है ते जिहड़ा जैजावंती 31 नंबर राग उहदे विच सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी है, होर किसी सतगुरां की बाणी नहीं। कुछ शब्द ने बीत जय है जन्म अकाज रे निस दिन सुनकै पुराण समझत न रे अजान काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जय है भाज रे अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे। इस तरह के शब्द उहदे विच आए ने। तां जैजावंती जिहड़ा अखीरला राग है उहदे ते गुरमुखां ने विचार की है कि पहला राग शुरू हुंदा है श्री राग जो अद्धी रात नूं गाया जाता है हनेरे विच राग विद्या के मुताबिक। ते 30 नंबर राग जिहड़ा वो प्रभाती है। सतगुरु जी के स्वरूप अंदर यह भी इशारा किया गया तरतीब विच रागां दे विच कि जे कोई मनुख अपनी जिंदगी नूं जप तो शुरू करेगा, क्योंकि पहला राग जिहड़ा वो जपजी साहब वो राग नहीं है, वो सीधी बाणी है। हालांकि पुरातन कुछ थावां ते उत्थे राग आसा भी लिखिया होया। आसा राग जिहड़ा अमृत वेले दा राग, पर गुरु साहब ने एक बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहब विच राग रहत रखिया, उहदे उत्ते कोई राग नहीं लिखिया। और मैं भी बेनती करा उहदे उत्ते महला भी कोई नहीं लिखिया। आपां वैसे कहने जपजी साहब गुरु नानक साहब जी की बाणी भरोसा है ना, ते हुण ख्याल फिर उधर चला जाता तर्कवादी सज्जणा वल भी जिहड़े सारे प्रूफ ही कहंदे ने भी उत्ते कुछ लिखिया ते तां मन्नांगे। ते थोड़ा जिहा विचार कर लईए जे तर्क दे हिसाब नाल कल्ला सोचोगे ते तुसी कल नूं फिर तुहानूं शक ही शक पैना। जिन्हों शक पैना शुरू हो गया वो तो मर गया, वड्डिया गया अंदर। जे शक ही करना है हर एक चीज़ ते भी इस चीज़ उत्ते महला नहीं लिखिया जी, रागमाला ते महला नहीं लिखिया, तो फिर जपजी साहब के उत्ते महला किहड़ा वेखोगे। फिर कल नूं भी कहोगे जी राग ते गुरु ग्रंथ साहब विच ते राग ने और श्री राग तो ही बाणी शुरू होंदी, पहला पता नहीं किन्ने पा दिता, क्योंकि उत्ते महला नहीं लिखा। भरोसा करिए सतगुरां दे उत्ते जो कुछ चल रहा है ना, जे हर एक चीज़ के उत्ते शक करी जाओगे तो जिहड़ी टहनी ते तुसी बैठे हो तुसी उसे नूं वड्डी जा रहे हो, फिर जमीन ते डिगना होर की होना।
ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਹਿਤ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ। ਬੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਈਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਚਰਚਾ ਹੀ ਐਸੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਉ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਉ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਦਰਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਖੰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਾਂ, 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ, ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ
ਤੇ 30 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ 30 ਨੰਬਰ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ 31 ਨੰਬਰ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੀ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਦੋਹ ਹੈ, ਝੋਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨੇਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਦਿਓ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਆਤਮ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਘੁਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਮਝੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘੁਲਣ ਆ ਜਾਏ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਮਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਣਾ, ਦੁਮਾਲਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਮਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਮਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਮਾਲਾ ਬੰਨਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਝੰਡੀ ਗੱਡ ਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਹਉ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦਇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
छोटे बाबे की गल आ गई, बाबा फतेह सिंह होरां दी। दुमाला शब्द निहंग सिंघां दे विच वैसे दो रवायतां ने, एक तो भी गुरु साहब ने बख्शिया से, पर दुमालियां दी रवायत, वड्डियां पग्गां दी रवायत जिहड़ी है वो साहिबजादे, सब तो छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह तो शुरू हुई, क्योंकि आप जी छोटे सी उम्र दे ते छोटी उम्र विच माता चढ़ाई कर गए, पिता कोल ज्यादा रहिंदे, कलगीधर पातशाह दादी कोल रहिंदे सी बहुता, ते बाबा फतेह सिंह उम्र घट सी। दुमाला कित्थों चलिया, आ वड्डियां पग्गां कित्थों चलियां ने? सानू खजाने दिते ने महाराज, हर एक पक्ष विच सिखां दी झोली विच खजानियां ते खजाने पाई गए। ये वड्डियां पग्गां हुण अज ते आपां वेहने आ, चलो ये चीज़ां हुण मर्यादा नाल संबंध रखदियां ने जां प्रबंध नाल, भी सानू पग्गां दा भी भार लगन लग पिया। छोटियां छोटियां लीरां जिहां सिर ते वल के, वड्डी उम्र हुंदी है, एक ते चलो बच्चा है, छोटा बच्चा, तां ये सिद्धांत नहीं सिक्खी दा। उत्थे 5 साल दा बाबा फतेह सिंह भी वड्डी पग बन्नदा है ते शहीदी दिंदा है। ते उन्हां दे जीवन दी एक घटना है कि बाबा फतेह सिंह छोटे सी ते बाहर वड्डे साहिबजादे ते सिखां दे पुत्तर सारे इकट्ठे हो के कुछ खेड रहे सी, जिवें बच्चे खेडदे आनंदपुर साहिब। बाबा फतेह सिंह गए, उम्र छोटी सी, हिम्मत शुरू तो बड़ी वड्डी सी, एवें नहीं उस कंध नूं भी उन्होंने ढा लिया, हिम्मत बड़ी सी। बाहर गए, कहंदे ने मैनूं भी खिडा लो, उम्र छोटी सी, 5 साल दी। तो जदों क्या वो जिहड़े खेड रहे सी उन्होंने कहा भी तू साडी भी खेड खराब करेगा, उम्र तेरी बिल्कुल थोड़ी, अजे तू खेड नहीं सकदा। पर वो अंदर चले गए। अंदर गए ते घर विच माता जी नूं, माता दादी नूं कह के कहंदे पग्गां कित्थे ने, दुमाले कित्थे ने, दस्तारां दित्तियां। एक पग बन्नी सीधी पुठी जिवें दी वज गई, दूजी फड़ी, दूजी बन्नण लग पे उत्ते, 2-3 पग्गां चंगियां उच्चियां करके बन लईआं। ये सानू बख्शां मिलियां ने गुरु घर वालों, उच्चियां पग्गां करके बन लईआं। ये उत्थों दातां मिलियां ने। ते जदों बन के बाहर निकल लगे तो अगों कलगीधर पातशाह आ गए। जदों वेख्या भी छोटा फतेह सिंह ते प्यार बहुता करदे सी, माता नहीं सी, कहन लगे, वेख के हस पे महाराज दसम पातशाह, कहन लगे फतेह सिंह आए कि बड़ियां पग्गां बन के बाहर जा रहे। तो छोटे बाबे ने जवाब दिता, कहन लगा, पिता जी मैं बाहर गया सी, मैं सारियां नूं कहा मैनूं भी विच खेड दे रला लो टीम दे। उन्होंने जवाब दे दिता, कहंदे क्यों? कहंदे उन्होंने क्या है कि फतेह सिंह अजे तेरी उम्र छोटी है, तू नीवा है साडे तो, तेरी हाइट घट है, ते फिर ये क्यों बनिया महाराज? कहंदे ते बाबा फतेह सिंह कहंदे, महाराज पिता जी ये तां बनिया ना, मैं पग बन के उन्हां जिहड़ा वड्डा हो गया, उन्हां जिन्नी हाइट मेरी उचाई हो गई, तो हुण मैं चला, हुण जे कहणगे भी तू छोटा है तो मैं कह देना मेरे नाल मिल के वेख लो, मैं तुहाडे जिन्ना उच्चा हो गया। ये कोई भविख दी गल सी ते सतगुरु कलगीधर पातशाह ने उस वेले प्यार विच आके भिज के एक वचन किया, जिहड़ा वचन बाबा फतेह सिंह दी शहीदी विच सहायक होया। वो वचन सी, बाहर नहीं बोले, कुछ गल्लां अंदर वरतदियां ने। कहन लगे, फतेह सिंह तू इकल्लियां पग्गां बन के वड्डा नहीं होया, असल विच तू वड्डियां वाले काम भी कर देंगा, तू वड्डियां नूं शहीदी विच पिछे छड़ जाएगा। ये दात वचन दित्ती सी। अज ते हुण असीं जे कोई सिंह थोड़ा जिहा दुमाला पग वधिया बंदा, उन्होंने कहने आ जी ये तो एवं भार चुकी फिरदा जी, साड़ी आदत बन गई है, क्योंकि असी अपने आप को समझने भी बड़े मॉडर्न हो गए। ये जी भार चुकी फिरदा। कई निहंग सिंह वेखे सन तुसां बई, वड्डे वड्डे दुमाले बन के होले महल्ले ते जांदे। वो एक निहंग सिंह सन, वो दुमाला वड्डा बन्निया सी ते किसे नवे नवे जिन्हें कन्नां विच मुंदरां पाईयां सी ना, वो नौजवान ने मखौल किया
कहते बाबा जी एडी वड्डी पग बन्नी जे। ते वो सियाणे सन। वो कहन लगा पुत्र हुण तुहाडे विच ते जिंद कोई नहीं रही, तुहाडे वालियां मैं ही बंधनियां ने, तुहाडे विच ते इन्नी भी जिंद नहीं रही, पग ही चुक लो सिर ते हुण तुहाडे वालियां पगां फिर मैं ही बंधनियां ने। मैं सोचा चलो याद ते रह जाए, आ जिहड़े जादियां बन्नियां ने उछियां तां ने, तुहाडे वालियां मैं बन्नियां होईयां। इस करके ये दातां मिलियां सन। मैं इत्थों अगे चला गया सी कि मैं गुरमिल उच्च दुमादड़ा सतगुरु ने 10 पातशाहियां ने 239 सालों के विच एक ऐसा शख्सियत मनुख तैयार किया है जिन्हों सतगुरु ने कहा तू निमरता भी रखनी है ते तू मेरा पहलवान भी है। जिंदगी के जेड़े भी खेतर के अंदर तू तुर रहा है उत्थे झुक के परवाह ना करी, झंडी गड्ड के तुरया कर। मैं गुरमिल उच्च दुमादड़ा सब हुई छिंज इकट्ठिया दे बैठा वेख है आप जीओ। आप फिर गुरु उस सिख की जीवन की खेड नूं वेखदा है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ एक वचन वो भी पढ़ते हैं फिर अर्थां वल आउण तो पहला, जिहदे विच महाराज कहंदे ने सब इकट्ठे होए आया। इत्थे सब इकट्ठे होए आया दा मतलब है कि जदों जन्म लिया है, जन्म सारियां दा इक्को तरीके नाल ही होया, भावें ब्रह्म ज्ञानी है ते भावें साकत है, जन्म इक्को तरह ही होएगा। सब इकट्ठे होए आया, पर जिवें दे इत्थे कर्म कीते ने, अमल कीते ने जिंदगी विच, घर जासन जदों वापस मुड़नगे वाट वटाया, वाट दा अर्थ है रस्ता, वटाया दा अर्थ है जान लग्या रस्ते बदल जाणगे, क्योंकि अपना रस्ता मनुख ने आप बनाउणा। आप उन्हें जिवें दा जीवन जीविया है। कई बार आप कहने मौत तो बाद की होवेगा, कुछ लोग कहते पता नहीं की होना है, एवें कहानियां जोड़ियां ने, बहुत कुछ बड़ा कुछ बोलने वाले ने अजकल नवे नवे मॉडर्न व्याख्याकार आए भी उत्थे बाहर अगे पता नहीं है भी कि नहीं कोई। ते मकसद की है, मैं सुन रहा सी किसी सुनाया सिंघा ने क्लिप सी भी विच कहंदे कोई किस्मत नहीं हुंदी, कोई अगला जन्म नहीं हुंदा, कोई पिछला जन्म नहीं। ये हुण बीमारी चली नवीं साडी कथा दे विच। ते हैरानी की गल है भी गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बह के बोल रहे हैं ते आपां अगे बह के सुनी जाने। आपां पुछ नहीं सकते भी जिहड़े प्यो दे कोल बैठा वो ते कहंदा भी पुराने जन्म ने, पिछले अज दा सारा शब्द कह रहा पिछले जन्मां दा प्रभाव है मनुख के जीवन। किन्ने शब्द आउंदे ने पुराने जन्मां की गल करदे ने, किन्ने जन्म कहंदे शब्द आउंदे बाणी दे विच कि अगे दोजक तपिया सुनिया हूल पवै कहा हाउ, तो अगली दुनिया की गल बाणी करती ते कोल बह के खंडन करी जाते। ये मनमत नहीं तो होर की। एक कह रहा जी किस्मत हुंदी ने, ठीक है सिख किस्मत का पुजारी नहीं, वो गुरु ते भरोसा रखता है। ते सिख नूं भरोसा है जे मेरी किस्मत माड़ी भी है तो मेरा गुरु इन्ना समर्थ है जिद्दां लिखण ते आया उन्हें चंगी लिख देनी अपने आप। ये गल है, पर भाग एक चीज है, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दो कार चलावै लेखे आवै। भाग भाग एक मनुख का हिस्सा है। ये गल्लां तां कीतियां जा रही बेविश्वासी पैदा हो जाए बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब, तर्क पैदा हो जाए। जे भाग ही नहीं तो एक लाइन दे विच 10 दुकानां ने इक्को जिहियां, इक्को जिहा समान है, इक्को थां ते 10 दुकानां ने, एक बंदा उन्होंने सारा दिन टाइम नहीं मिलता सौदा तोल के देंदियां ते एक वेला बैठा उहदे कोल आउंदा ही कोई नहीं। दसो फर्क है कि नहीं उहदे विच? भाग क्यों नहीं हुंदा? पर आपां सारी उम्र कीती डॉक्टरी, लोकां नूं ला ला के टीके ते पिछली उम्रे कथावाचक बन के सिख कौम नूं समझाउण लग पए। कुछ अकल नूं हथ मारीए भी गुरु की बाणी दा खंडन ना करिए। वो 10 दुकानां दे विच समान भी इक्को जिहा है ते मार्केट दीयां दुकानां भी इक्को जिहियां ने। एक ते लाइन नहीं टुटदी ते दूजा सारा दिन बह के उड़ीकदा हुंदा कोई नहीं इहदे पिछे किहड़ी कला काम करदी। ठीक है, गुरु साहब ने सिख नूं कहा तू बहुता उदम कर, हिम्मत कर, जे उदम करेगा जे माड़े भाग ने ते गुरु चंगे भी लिख देगा। इत्थे वो घर है जिथे एक माई सुलखणी गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहंदी मेरे घर पुत्र नहीं, ते महाराज कहंदे तेरे भागां विच नहीं लिखिया। निराश हो गई
वापस आई, भाई गुरदास मिले, रो रही सी। पूछया क्यों? कह लगी इक्को थां सी, उत्थों भी जवाब मिल गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा तेरे भागां विच नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उन्होंने एक कागज दिता, पेन दिता, कहन लगे जा हुण लैके जा। जदों कहणगे ना तेरे भागां विच नहीं लिखिया धुरों, ते उत्थे जाके कह दी महाराज उत्थे भी तुसी लिखण वाले हो, उदों नहीं लिखिया ते हुण लिख दिओ। जदों ये बचन कहे ते गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे माई ये ज्ञान तेरा नहीं, तेनू कोई मिलिया है जिन्हें मेरा भेत दे दिता। तेन ये गुरमुख है। उत्थे लिखे 7 पुत्र होए, ये इतिहास है, गुरु का इतिहास। इस करके गुरबाणी दे सिद्धांतां नूं आप पढ़िया करो, ते जे कोई गलत बोलदा उहनूं तुसीं पुछो, क्योंकि असीं वार-वार कहने आ, सानूं फिर संगत विच भी कहण लग पैंदे भी शायद ईरखा करदे किसी बंदे नाल। सानूं लोड़ ही ना पवे बोलण दी, तुसीं पुछो की बोल रहे हो, तुसीं कित्थों लिआंदा, आपे जवाब देणगे। इस करके इत्थे वचन है कि घर जासन वाट बटाया, सब इकट्ठे होए आया। घर जासन वाट बटाया, ते महाराज ने अगे इस शब्द नाल संबंधित वचन कहे ने, गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जी। गुरमुखां ने लाहा खट लिया, ते मूल दा मतलब हुंदा मूल धन, जिहड़ा अपने कोल मूल धन सवासां दा वो भी गवा के चले गए ने। सतगुरु जी दे वचन पढ़िए एक बारी प्यार नाल, सारे एक बारी उच्ची आवाज विच बोलो। गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा। मनमुख चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले मूल गवाए जियो, मनमुख चले, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा लै गए, गुरमुख लाहा। गुरमुखां ने लाहा खट लिया, शरीर दे विच जो नाम दा पदार्थ सी वो जप के विचों कढ लिया, उहनूं भोगिया ते जैजावंती जित दा नगारा वजा के गए ने। जीवन विच झुरे नहीं, सतगुरु ने कृपा कीती है। इस करके जिहड़ा सिख दी चढ़ाई ते संस्कार ते बाणी पढ़ी जाती उहदा नाम है सोहला, कीर्तन सोहला। सोहले दा अर्थ है खुशी दा गीत। कठिन है, औखा है, पर सतगुरु ने मार्ग वो दे दिता है कि मेरे सिख दी मौत भी जन्म विच बदल जाए। दुनिया नूं मौत कवे ते सिख कवे मेरा ते जन्म होया रब दे घर विच। ये वो दात महाराज ने दिती, जे शरीर नूं सफल करना तां इत्थे कबीर जी कहंदे, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारै बार। ये बार बार नहीं मिलना। ज्यों बन फल पाके भुए गिरे, बहुर न लागै डार। ये शरीर नूं कहा जिहड़ा आनंद नाल इस तरह भरिया जिवें सरोवर भरिया हुंदा है। कबीर पाल समूहा सरवर भरा, पी ना सकै कोई नीर। कहंदे साडी हालात ये है भी जिवें एक बंदा प्यासा मरदा सी पर कंढे ते बैठा होया, कोल पानी ते पींदा नहीं बुक भर के। इस तरह शरीर दे विच इन्ना सुख है, इन्ना आनंद है। कबीर साहब कहंदे ने कंढियां तक जीवन आनंद नाल भरिया होया। पाल समूहा, पाल दा अर्थ कंढियां तक, सरवर भरा, जीवन सुख नाल आनंद नाल भरिया होया। पी ना सकै कोई नीर, पींदा नहीं क्यों? गुरु तो जाच ही नहीं सिखदा। किन्ना ने पीता है? भाग बड़े ते पायो, तू भर भर पियो। कबीर कहंदे तेरे भाग खुल गए ने। तू प्यार नाल पढ़, इस पंक्ति नूं पढ़िए।
तू भर भर पियो कबीर, तू भर भर पियो कबीर, तू भर भर पियो। भाग बड़े तै पायो, भाग बड़े तै पायो, भाग बड़े तै। तू भर भर पियो कबीर, तू भर भर पियो कबीर, तू भर भर। कहन लगे दा प्याला भर के पी। ते सतगुरु इत्थे दोवें पक्ष लै रहे ने, खुशी खुवार भय रस भोगन, फोकट कर्म विकार करे। ये मनमुख दी नाल संबंध रखदी पंक्ति। कहंदे खुशी नूं, संसारक खुशी नूं सच मन लिया इन्हें, धोखा खा गया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही नच्ची टप्पी जाता है, रब चेते ही नहीं रहा। कहंदा आ ही जीवन है, खाओ पीओ नचो टप्पो, बस आ ही जीवन समझ लिया। खुआरी कर ली जिंदगी दी, असली कारज भुल गया। मूल काम की सी जीवन का? आत्मक आनंद की प्राप्ति करनी। खुशी खुआर, संसार दियां झूठियां खुशियां दे विच फसिया खुआर हो गया। भय रस भोगन, संसार दे रसां दे भोगां दे विच आप ही भोगिया गया। ये भोग शब्द है ही तां संसार दा। आपां कहने फलाना बंदा संसार नूं भोग रहा है, इस वास्ते शब्द नहीं सी बनिया। इहदे अर्थ ने मनुख भोगिया जा रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। भय रस भोगन, फोकट कर्म। फोकट का मतलब हुंदा फोका, जिवें झोने नूं सिट्टा ते लग जाए चौल ना पैण, उहनूं कहंदे फोका कर्म। वो कर्म जिहदे विचों कख नहीं निकलदा, खुआरी तो बिना कख नहीं पल्ले पैंदा, वो कर्म करी जाने। फोकट कर्म किहड़े ने? विकार करे, जिन्हां ने विकार ही कीते ने। विकार यानी कि बेकार, जिहड़े काम नहीं सी आउणे। फिर कहंदे नाम विसार, लोभ मूल खोयो। नाम नूं भुल के असली मूल भी गवा दिता है। जो अंदर मूल परमात्मा ने श्वासां दी पूंजी भेजी सी, वो गवा दिती सारा दिन संसार विच भज भज। मूल धन भी खत्म हो गया, अगों वधना कित्थों सी, पिछला भी गया। लोभ मूल खोया, लोभ विच फस के गवा दिता जीवन। सिर धर्म राय का डंड परे, हुण धर्म राय दे डंडे उहदे सिर विच पैणे ने ते पै रहे ने। पर अगे हुण 11वें ते 12वें अंक विच महाराज गुरमुख की व्याख्या करते हैं। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जां को हर प्रभ नदर करे। पर जेड़े गुरमुख ने वो अकाल पुरख दे नाम दे गुण गाउंदे ने, गुरु की बाणी पढ़ते और मनते हैं, विचार करते हैं। साहब सच्चे पातशाह कहते जिन्हां ते वैगुरू ने बख्शिश की है, ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे। वो जेड़े गुरमुख ने पवित्र हो गए ने, मैल तो रहत हो गए, मैल तो रहत हो गए, अपरंपर नाल जुड़े हन, पार ब्रह्म नाल जुड़ गए हन। ते जग में गुरु गोबिंद हरे, गुरु गोबिंद ने परमात्मा ने उन्हां दा जीवन हरा भरा कर दिता है। उन्हां दे जीवन विच बसंत आ गई है। हर सिमरो गुर बचन समारो। फिर जदों ये सारे 12 अंकां दे विच बड़ी ताड़ना कीती है ना भी तू जिंदगी हार गया, ते बेनती कीती सिखा ने महाराज कोई उपदेश बख्शो, जीवन सफल किवें होवे। ते कहन लगे आ 3 काम करो। हर सिमरो, एक ते नाम दा सिमरन करो, नाम जपो। गुर बचन समारो, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचन चेते रखो, उपदेश नूं याद रखो। संगत हर जन भाव करे, ते गुरु के प्यारियां दी प्रेम नाल संगत करो। आ 3 चीज़ां महाराज दित्तियां ने। संगत हर जन भाव करे, हर जन गुर प्रधान द्वारै। जेड़े वैगुरू दे जन प्यारे हन, ਉਹਦੇ दर ते प्रधान यानी कि वड्डे गिने जाते हैं, चुने गए हैं। नानक तिन जन की रेन हरे। हे प्रभु कृपा करो, अपने जना दी, अपने प्यारियां दी आप जी रेन बख्शिश कर दिओ, धूड़ बख्शिश कर दिओ, कृपा कर दिओ।
आओ 1-2 मिनट आप फिर गुरु शब्द नाल सारे जुड़िए। वाहेगुरु 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 संगत जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।